Okay, good morning, students. Now, unfortunately, in morning class, I was not able. I will not say that I have not made the settings of recording, so the video can't be prepared that time. So I'm making a new video for everyone. And as I have discussed a lot about conditional sentences in the morning class, but again, I'm doing this to just go through the video and revise your topic for today. So in the morning class, I have discussed you about what are conditional sentences. Conditional sentences होते क्या हैं? So previous class में भी मैंने आप लोगों को ये discuss किया था कि conditional sentences S sentences को बोलते हैं where our result is dependent on some conditions. Condition का मतलब परिस्थिति या शर्त. So in these types of sentences, you will see that there are clearly two parts of a sentence. One part will have use of if, and the second part, your main clause. So students, you are definitely going to ask him, ma'am, if there are two clauses. First of all, can you please explain what are clause? I hope I have never done this with class 4. So I am doing this clause again for you guys. See बच्चों, clauses are the parts. Clause कहते हैं हम उन parts को. Clauses actually are group of words. Clauses are group of words. When you are making a long sentence या lengthwise जो sentence थोड़े लंबे होते हैं, आप देखोगे कि these clauses are group of them. These clauses are part of a long sentence. So we can say that clauses are clauses are part of long sentences. Part of long sentence. As I told you that conditional sentence is a sentence that express a condition. Conditional sentences are made up of two clauses, one beginning with if and one main clause. The order of clause can change. That means, see, if I would like, I would like to explain you from this example. See here. It is an example. If it rains, it will say, I will stay at home. Let me have some spotlight for you. Here, you can see here. Look at from here, the light. If it rains, I will stay at home. Bachcho, can you see the two parts, clear two parts of this one sentence? If it rains, and the second one, I will stay at home. है ना? एक ही सेंटेंस में आपको दो क्लियर पार्ट्स दिख रहे हैं. So this if part, एक पार्ट जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, that will begin with if. दो पार्ट्स में एक में if का होना डेफिनेटली नेसेसरी हो जाता है, और सेकेंड पार्ट इज योर मेन क्लॉज. अच्छा, ये ऑर्डर इन द सेंस जो मैंने यहाँ आपको बताया कि द ऑर्डर ऑफ क्लॉज कैन चेंज, ये ऑफ कोर्स चेंज. ये इसका मतलब ये कि कभी हो सकता है कि जो हमारा मेन क्लॉज हो वही सेंटेंस के बिगनिंग में हो और इफ वाला पार्ट बाद में हो, या कभी होता है कि इफ वाला पार्ट जो हमारा होता है दैट विल बी इन द बिगनिंग and the rest part will be at last. So for an example, if it rains, I will stay at home. So it is clearly you can see our result depends on the condition. अगर बारिश होगी तो ही मैं घर पे रहूंगा, है ना. Now next is, अब इसी का अगर मैंने कहा कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो ऑर्डर चेंज मतलब I will stay at home if it rains. मैं घर में रहूंगा अगर बारिश हुई तो सेम सेंटेंस सेम मीनिंग है, बट यू कैन सी
the order are changed. ठीक है? Now let's see the next slide. So this is the definition. आप चाहो तो मैं ग्रुप में इसको शेयर करूंगी, आप वहां से इसको लिख भी सकते हैं. Now one more thing. Okay, let's see. Types of conditionals. So generally we used to read in English grammar, there are 4 types of conditional sentences. 4 तरह के हमारे conditional sentences होते हैं. कौन कौन? पहला है zero conditionals. Second है first conditionals. Okay, let me just first just clear this drawing, whatever I have written. Yeah, first type of conditional sentences are zero conditional. Second is first conditional, second conditional, and third conditional. So these are the 4 types of conditional sentences. Now we'll see what are the types. Types we have already mentioned, told you the 4 types name. Now we'll one by one try to explain you. I'll explain you what are these types of conditionals. The first type of conditional sentences are zero conditionals. What is zero? Zero conditional sentences are that type of sentence in which we express a general truth or we give advice to someone. As I told you in that conditional sentences, our result depends on certain conditions. So can you just have a look on the example mentioned above? ऊपर जो example दिया हुआ है इसको आप देखो. If you don't water flowers, they die. ना एक कॉमा आपको यहाँ दिख रहा होगा बच्चों, जिससे क्लियरली पता है दैट सेंटेंस. पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आपको पता है कि सेंटेंसेस कहते किसको है? बहुत बार मैंने आप लोगों को समझाया है क्लास में कि सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शुड गिव यू अ कंप्लीट मीनिंग, जिसको पढ़ने से हमें कुछ शब्दों का वैसा समूह जिसको पढ़ने के बाद हमें कुछ मतलब समझ में आए. Group of words that explains us some that are able to convey us meaning, that are called sentences. तो जैसे अगर आप यहाँ पढ़ोगे, if you don't water flowers they die, अगर आप पौधों में या फूलों में पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे, है ना? ये इसको पढ़ने से आपको एक क्लियरली एक मीनिंग का पता चल रहा है ना? और मीनिंग का पता चल रहा है, इसका मतलब ये शब्द एक, ये जो शब्दों का ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये आपको एक मीनिंग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस डेफिनेटली. अब इस सेंटेंस में मैंने आपको कंडीशनल समझाया था, आप देखोगे ये जो कंडीशनल्स हैं ये पौधों का मरना किस पे डिपेंड करता है? हमारे एक्शन पे, अगर हम पानी नहीं देंगे, है ना? तो आप देखो कि यहाँ इस रिजल्ट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन. So these types of sentences are called conditional sentences. Now again I told you that these conditional sentences are clearly divided into 2 parts. देखो one part है ना जिसमें if है, जो मैंने कहा है उसको बोलते हैं if clause, है ना? This part of the sentence is having if. Then second part is your main clause, they die. Again in next example you can see if you have a headache, stop watching TV. अगर आप देखो तो हर एक पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एबल टू गिव यू अ मीनिंग, है ना? लेकिन इंटरडिपेंडेंट है. इफ यू हैव अ हेडेक, अगर आपको सिर दर्द है, देन स्टॉप वॉचिंग टीवी. ये हमारा जो रिजल्ट है ये हमारे इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ये जो हमारा एक्शन है ये हमारा डिपेंड करता है इस सिचुएशन पे. अगर सर दर्द है तो टीवी बंद करो. तो ये तो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया. लेकिन इसको हमने जीरो कंडीशनल्स क्यों कहा? देखो जब हमारा इफ क्लॉज और मीन क्लॉज यानी दोनों ही पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, है ना? प्रेजेंट सिंपल में हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या इसी को हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं. अगर इसमें ये टेंस होता है यानी जो हमारा, देखोगे आप बच्चों ये देखो ये
ये जो सेंटेंस है दोनों, इनमें दोनों पार्ट्स अगर हमारे दोनों पार्ट्स सेंटेंस के अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो वो हमारा होता है जीरो कंडीशनल्स, यानी फर्स्ट पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट में और सेकंड पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट में। ये सेंटेंसेस जनरली किस लिए यूज होते हैं? ये तब वहां यूज होते हैं जहां हमें किसी को सलाह या सजेशन या एडवाइस देनी होती है। So these are called zero condition. Now comes your first conditional. What are first conditionals? If the weather is nice, we will go for a walk. है ना? यहाँ भी वही पैटर्न है कंडीशनल सेंटेंसेस। आप देखो दो सेंटेंस है ना, दो पार्ट से सेंटेंस के, क्लियरली टू पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। सेकेंड पार्ट जो हमारा मेन क्लॉज है, ये हमारा एक्शन शो करता है, और हमारा ये एक्शन किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पार्ट पे, जिस ऐसे क्लॉज पे जहां की इफ है, दैट इज कॉल्ड इफ क्लॉज। तो ये फर्स्ट कंडीशनल की है। फर्स्ट कंडीशनल इसमें बच्चों क्योंकि हमारे फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट में है, और सेकेंड पार्ट में आप देखोगे अगर तो यहाँ पे विल है, यूज ऑफ विल है। तो ये जो विल है ये हमारे फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट करता है। हम विल वही लगाते हैं जहां हमें फ्यूचर टेंस को सिंबलाइज करना होता है। तो ये जो हमारा इफ क्लॉज वाला पार्ट है, अगर ये मेरा सिंपल प्रेजेंट में है और सेकेंड पार्ट या जो मेन क्लॉज वाला पार्ट है ये हमारा फ्यूचर सिंपल है या सिंपल फ्यूचर में है, तो ये हमारे कहलाते हैं फर्स्ट कंडीशनल्स। ठीक है? इफ द वेदर इज नाइस वी विल गो फॉर अ वॉक। इफ यू डोंट अपोलोजाइज शी विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन। है ना? तो ये आप समझो कि ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें कहता है कि अगर वेदर अच्छा होगा देन वी विल गो फॉर अ वॉक, यानी हमारा अभी एक्शन हुआ नहीं है, वो एक्शन होगा। इट इज नॉट सर्टेन, इट इज अनसर्टेन। आवर एक्शन इज अनसर्टेन। एक हाइपो ना, एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मौसम अच्छा होगा तो ही हम वॉक के लिए जाएंगे। है ना? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, इफ यू डोंट अपोलोजाइज शी विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन। अगर आप माफी मांगोगे, नहीं मांगोगे, तो वो कभी भी आप पे विश्वास नहीं करेगी। यानी उसका विश्वास करना फ्यूचर है ना? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मेरे माफी मांगने पे। है ना? इफ यू डोंट अपोलोजाइज दैट मीन्स हर एक्शन which is going to be happen in future that is dependent on the action done by me in present. So the first conditionals refers to the present and future. है ना? फर्स्ट कंडीशनल किस पे डिपेंड करता है? सिंपल प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। है ना? जहां हमारा सिचुएशन तो होगा प्रेजेंट का, लेकिन मेरा जो एक्शन होगा वो होगा फ्यूचर में। है ना? It express a possible condition and its probable result in the future. एक होना, जो होने के लायक का ना हमारा वो परिस्थिति बन सकती है जहां पे अनसर्टेन तो नहीं, सर्टेनिटी नहीं है, होने का एक चांस है, और उसी पे बेस्ड जो हमारा रिजल्ट है या हमारा एक्शन है वो भी डिपेंड करता है। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशनल। नाउ कम्स योर सेकंड कंडीशनल। व्हाट इज द सेकंड कंडीशनल? क्लॉज और इफ क्लॉज मेन क्लॉज बताने की मुझे जरूरत नहीं है, बस अब मैं ये बताऊंगी। जैसे फर्स्ट कंडीशनल्स में आपने देखा कि पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट का था और सेकंड पार्ट जो था मेन क्लॉज का वहां पे वो फ्यूचर था। यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही मेरा, अगर आपका फर्स्ट पार्ट या इफ क्लॉज वाला पार्ट पास्ट में है ना, पास्ट टेंस में है, तो जो मेन क्लॉज होता है उसमें हम वुड या कुड का यूज करते हैं। ठीक है? फर्स्ट पार्ट अगर मेरा पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो हम सेकेंड पार्ट में या मेन क्लॉज में हम वुड या कुड का यूज करते हैं। ठीक है? लाइक इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ये हैड, यूज ऑफ हैड बना रहा है कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये पास्ट है ना?
I would buy a big house. If I knew his number, I would phone him. See, knew and had both shows that my first part of the sentence, first clause or the if clause is in simple past. That's why the next part we are using would. So as you can see on the slide, if clause past tense simple है ना, मेन क्लॉज किस में क्या ऐड हो गया है, would या फिर could. The second conditional refers to the present and future. It expresses an unreal situation and its possible or probable result. The situation or condition is improbable or impossible, imaginary or contrary to known facts. That means the action is certain ना, अगर होता, अभी इसमें होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये हैड है, ये पास्ट ऑलरेडी है, इसलिए अगर ना मेरे पास पैसा है और ना मैं बड़ा घर खरीद सकता हूं, अगर होता तो मैं वो काम करता, है ना. So this is a completely imaginary situation. This is second conditional. Third conditionals are little bit tough, which I think for class 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बच्चा, क्योंकि ये आप डिटेल में भी टेंसेस के फॉर्मेट्स को क्लियरली आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है. सो बट आप ये जान लो कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो होता है यानी इफ क्लॉज वाला पार्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है वो उसमें हम यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखा कि सिंपल पास्ट है तो हमने यहाँ पे वुड लगाया था. सेकंड पार्ट में मेन क्लॉज में फॉर्मेट हमारा ये हो जाता है वुड हैव एंड पार्टिसिपल, like this. If I had a lot of money, I would have bought a big house. If I had known his number, I would have phoned him. So the third conditional refers to the past and it is not based on facts. It expresses a situation which is contrary to reality in the past. So this is all about conditional sentences, students. So this we will focus on our rest of the worksheets. So that's all for today. Have a nice day and please go through the video, try to understand, and if you find any difficulty, you can ask me easily. Further, we will discuss in our next class. That's all for today.